Okay, so let's create the other one, the second one, this one. और इसके frames हैं 40, so let's create 40 FPS. Or if you are not able to see this, press Ctrl D or 25 इसको कर दें. Now you can just bring this down, Shift V press करें और opacity कर दें. There's a way where where this file can be already set up, so I will tell you guys that later. Right now, just to practice these things out, just repeat it in every shot so that you can get comfortable setting these things up naturally. Anyway, so 40 कितने FPS कितने frames है? 40 frames, 40 frames. Now we just need to import our iPhone model और इसको हम क्लोनर में डाल देंगे. ठीक है, जैसे ही क्लोनर में डालेंगे यू विल सी कि ये डुप्लीकेट हो गया. ठीक है, तो हाउ डिड दैट हैपन? लेट मी जस्ट अनडू इट एंड लेट यू. देखिए क्लोनर ये है, लिखा हुआ है इस पर. जैसे क्लिक करेंगे इसको, इसमें आप कोई भी चीज़ अगर इसमें इनपुट करेंगे तो उसके डुप्लीकेट्स बना देगा. सो इट्स मोर लाइक ए डुप्लीकेटर बट एडवांस्ड डुप्लीकेटर. ठीक है, सो इट मेक्स क्लोन्स and you can play with them. So this is the core thing in the whole Cinema 4D. This is the main thing. This is the Mo graph of it. This is the core क्या कहते हैं, core feature of the whole Cinema 4D. ठीक है, मैं phone model इसके अंदर रखता हूँ. So now it will just take a while and give you guys some clones. So we don't want these clones in linear format. So जैसे ही मैं clone पे click करता हूँ, you will see in the object menu कि grid की form में है. For example, count अगर मैं बढ़ाऊँ तो you will see कि grid किस form में है, और अगर मैं इधर बढ़ाऊँ तो you will see कि इसने ऊपर बना दी है. So if I just ये इस तरह दिखाऊँ तो you can see the duplicates. But I don't want the clones like this. I want them in a radial format. So let's just click on it. ठीक है, और इसमें मैं जैसी रेडियस बढ़ाऊंगा you will see the difference. Now what we need to do is we need to say कि भाई ये इस तरह से नहीं देखना है. Let's just go back to the reference and see how it is made. So मैं इसको इस जगह पर छोड़ दूंगा so that I can understand क्या हो रहा है. So back है first of all. ठीक है, और the whole point of this to show the colors and variation of it. So let's try that out. So ये है, okay, I think this is the right one. But again, you see कि जो camera है वो अलग direction में है. We want this to be here. So how can we do that? We can just do that simply कि ये जो है इसको अगर मैं rotate करूँ तो maybe it will not affect anything. But क्या हो, ये थोड़ा slow हो गया है. But what we can do is just to put this in a null object. Let me just phone model. इसको Alt G प्रेस करूँगा तो वो ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है, और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से 180 शिफ्ट दबा कर. Now if you just click on it you can see कि ये इन्वर्ट हो गया. ठीक है, so let's just go here. ऐसे यहाँ पर हमें एक अलग शेप बन रहा है. उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट शेप था क्योंकि उसमें एजेस लाइंस यहाँ पर ज़्यादा थी. तो लेट्स जस्ट ऐड मोर क्लोन्स. ये नंबर ऑफ क्लोन्स है, 5 की जगह 6 कर दें. सो आई थिंक दिस इज़ इट, बट वी नीड टू रोटेट दैम. तो रोटेट किस तरह होगा? रोटेट के लिए ट्रांसफॉर्म में आ जाए. ट्रांसफॉर्म यहाँ पर दो है. कोऑर्डिनेट क्या करेगा वो ओवरऑल शेप को, ओवरऑल लेयर को रोटेट करेगा. बट इन द ट्रांसफॉर्म यू कैन रोटेट देम मैनुअली. सो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ नाइस इफेक्ट. But we don't want to rotate this. We want to rotate them like this. You see, this looks really nice. So let's just select the 1920 0. ठीक है, so और कैमरा सेलेक्ट करते हैं. कैमरा
कैमरा अभी डायरेक्ट इसको होल्ड करें, टारगेट कैमरा नहीं, हमें सिर्फ कैमरा नॉर्मल चाहिए, सेलेक्ट किया, टारगेट हटा देते हैं और क्लासिक की जगह लेट्स जस्ट गो विद द पोर्ट्रेट वन। ठीक है, अभी ये देखें किस तरह घूम रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ क्लोनर को। सिलेक्ट करूँगा, अब मैं मूव करूँगा तो यू कैन सी के अब थोड़ा बेहतर मूवमेंट दे रहा है। See, what I think about this frame is that we have to go, पहले देख लेते हैं इसका एक जनरल सेटअप करते हैं कि फ्रेम किस हिसाब से की फ्रेम बना लेते हैं कि इसको कैसा होना चाहिए। You see this is nice but there, you see this is nice but let me just go in the coordinates, इसकी रोटेशन ख़त्म करूँगा, वो कैमरे हटा दूँ, नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन -90, 0, -180। सो पूरी वैल्यूज़ देंगे तो उससे अगर कहीं पर कोई ऑफ वैल्यू जा रही होगी तो वो सही हो जाएगी। ठीक है, और लेट्स सी, खैर नाउ लेट्स सी के अरे ये वाला दिस लुक्स रियली नाइस। जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाए वरना ये इंटरसेक्शन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यू कैन सी ओके। सो मैं भी इसको हटाता हूँ, तो मैं देखना है कि मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन तो हो रही है और हो रही है इंटरसेक्शन। सो क्या करना है, यहाँ पर आके जो मैंने रोटेशन दी थी उसको मैं और बढ़ा के देखता हूँ कि कितनी रोटेशन मैं कम कर सकता हूँ। सो आई थिंक इतनी नहीं ज़्यादा हो रही, बट स्टिल यू कैन सी कि एक हद तक आकर यू कैन जस्ट यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू लीव द होल थिंग। बट ये कि अगर कैमरा में नहीं आ रही तो यू कैन गेट अवे विद इट इफ इट्स, because in 3D if it is not showing in the camera की intersection हो रही है, you can get away with it because it's not nobody will see the source file of it. So sure, let me give it a better value और देखते हैं कि कितना, I think इतना काफ़ी है। That is the maximum value we can give it to it. We can give it. ठीक है, and I think this looks nice. So पहले तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर लॉक कर देता हूँ 70। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ क्योंकि एक्चुअली इसका इफेक्ट ये कि आता है बंद होगा और फिर ये खुल जाए ताकि वो ट्रांजिशन बन जाए दूसरे फ्रेम के लिए शटर की तरह। सो लेट्स जस्ट गो लाइक दिस। ठीक है, एक काम और हो सकता है कि अगर मैं आते हुए इसकी रोटेशन भी चेंज करूँ तो ये और बेहतर लगेगा आते हुए। ठीक है, सो लेट्स सी कि आते हुए रोटेट भी हो रहा होगा, जैसे अब रोटेट भी हो रहा है। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू लेट देम गो। ओके, ठीक है, और just rotate them as well. So we have sort of a transition. But अभी देखें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, बट प्रॉब्लम तो नहीं है, अब इसी नहीं है कि ये यहाँ तक मैंने रोक दिया, वो इस वजह से रोका क्योंकि we need to add some rotation in the camera as well. So let's try that. ये आया, and now at this point we need to show all of these क्या कहते हैं, ऑल ऑफ दिस स्पेस कवर्ड ताकि ट्रांजिशन बन सके। एक्चुअली वो ये रहा है कि जब ये सब आता है ये पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है ताकि पीछे की बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्रिएट अ गुड मूविंग एनिमेशन आउट ऑफ इट, उसके बाद सोचते हैं कि ये
क्या करना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ इस फ्रेम को, और मैं इसको होल्ड रखूँगा थोड़ी देर तक, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही रहेगा और फिर ये चला जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। आया, अच्छा लगे, ठीक है। नाउ आई जस्ट नीड टू रोटेट दैम, ठीक है। वो बहुत आसान है, आप क्लोजर में आ जाएं और इवन जस्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में नहीं, कोऑर्डिनेट्स के सेक्शन में, एंड जस्ट रोटेट देम लाइक दिस। गलत, ये वाले वैल्यूज, ठीक है। इसको 90 करता है और इसको फिर मैं 95 कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी देर बहुत सटल हो बट ये मूव होता रहे, और फिर ये 180 हो जाए। लेट्स सी क्या बने, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, सो और मुझे लगता है कोई ये इंटरेस्टिंग रोटेशन लग भी नहीं रही है, बट इट डज लुक नाइस। इट्स नॉट लाइक ये बुरा लग रहा है, बट इट्स लाइक कि ये बहुत कोई अपीलिंग नहीं लग रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर है, वो मतलब इन्हें पता है यहाँ पर आके रुकना है, थोड़ा ऑफसेट होना चाहिए ना, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि इफ आई वांट टू क्रिएट अ कैमरा एनिमेशन, बट यू सी इट डजंट लुक नाइस बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े लेंसेज हैं और ये करीब से बड़े अजीब लगेंगे, इतने सारे भरे हुए, ठीक है। तो आई रियली डोंट वांट टू डू दिस, मैं इससे ज़्यादा स्केल अप इसे करना नहीं चाहता। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस थिंग इनटू दिस एरिया एज वेल, तो वो एक पीछे भी ऐसा लगेगा, एक टनल इफेक्ट आ गया। बट फॉर टू डू दैट, बिफोर वी डू दैट, इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि दिस लुक्स अ बिट वियर्ड राइट नाउ। सो लेट्स सी, ट्रांसफॉर्म, ये ये एनिमेशन, एफ कर्व, ये आया, और इसको रोक देते हैं। इसी तरह इसको ऐसे कर, ये इसको ऐसे कर, ठीक है। और इसको भी बाहर ले जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी कितना कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। और अच्छा, मुझे लगता है जब ये यहाँ पर आ जाए तो इसमें कोई अंदर यहाँ पर ना कोई ट्विस्ट एनिमेशन होनी चाहिए इन्हीं के दरमियान, ताकि ऐसा लगे कि आके अंदर थोड़े से रोटेट वगैरह हो रहे हैं और ये थोड़े अलाइव है। सो वी नीड टू सी कि ये किस तरह से हो सकता है। आई थिंक दिस एनिमेशन कैन, ओ ये हो सकता है, ये काम हो सकता है, ठीक है। बट ये देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाती है, सो वी रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आई थिंक ये इतना हम एनिमेट कर सकते हैं, ये अच्छा लगेगा आकर। सही सही, ये आया, ये आया, नहीं ये आया, 10 तक ये करते हैं, और इसको फिर कटा देते हैं। लेट्स सी, अभी क्योंकि सब कुछ लीनियर है तो आई डोंट थिंक इट विल लुक रियली नाइस, बट लेट्स, इट विल एटलीस्ट make a good effect out of it. Second,
मुझे लगता है कि ये फ्री फ्रेम्स भी ना और थोड़े पीछे पीछे होने चाहिए, ताकि जो एक्चुअल काम है, जो चीज़ें दिखानी है वो आ सके। ज्योमेट्री ऑनली मैं कह रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ अभी फ़ोन पे फोकस कर सकूँ। अच्छा, आई डू लाइक हाउ दे आर ट्विस्टिंग, बट द वे दे आर गोइंग बैक डजंट लुक रियली नाइस। क्योंकि वो देखिए बड़ा जर्क आ रहा है अजीब से, और वो रोटेट ही हो रहा है साथ साथ से। Maybe rotation is not the right thing to do. Uh, so let's try one thing. I have an idea कि मैं कैमरा zoom in करता हुआ अंदर लेता हूँ. Let's try that. ठीक है, बट इसके लिए मुझे ये वाला की फ्रेम हटाना होगा और ये की फ्रेम मुझे एंड तक लेकर जाना होगा. ऐसे. सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा कैमरा एनिमेट करना. कैमरा और लेट जूम इन. ठीक है, लेट just get into it. देखते हैं क्या लग रहा है. Yeah, it doesn't look bad, but the effect of it should be, a bit more smoother. क्योंकि ये देखें यहाँ पर आकर देखें ये एक अजीब सा एक जर्क आता है. सो इट शुड लुक स्मूथ. सो लेट्स से क्या कर सकते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं. सो और ये भी बहुत तेज़ आके रुक जाते हैं इधर. ये बहुत तेज़ आके रुक रहे हैं. सो यू नीड टू सी दिस एज वेल. एनिमेशन एफर्ट्स आकर तो वो जितना कम हो सकते हैं रुक रहे हैं, बट और स्मूथ जितने कितना हो सकता है. सही, ये ठीक है, बट इट्स नॉट रियली दैट ग्रेट. सही है, इसको ज़रा देखना होगा कि और मुझे लगता है अब हम कैमरा जो है ना, अब हम कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि क्योंकि देख रहे हैं एकदम से यहाँ से बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा सा स्मूथनेस ऑफ हो रही है. सो वी कैन जस्ट स्टार्ट मूविंग द कैमरा फ्रॉम हियर. तो ये कैमरा की जो एक ये है, ये यहाँ से हो जाए. ठीक है यार, वी कैन जस्ट डू दिस. थोड़ा सा हो सकता है स्मूथनेस आ जाए. हाँ देखिए, इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है. बट अगेन the abruptness when the camera just hits the end of it. यहाँ पर देखिए ये बड़ा अजीब स्पॉट है, और यहाँ पे हो सकता है इंटरसेक्शन भी नज़र आए. So we really have to be very very careful about these things, because these are the things which gets noticed by the viewers, and especially by the artist if you're sending their portfolios somewhere. So you see these things need to be, you need to be extra careful about these things. So there is one solution. I think I can try that out. But before doing that, I would like to, just do some values. ये सारी polishing की चीज़ें हम end में भी कर सकते हैं. But what I'm really interested right now is to get the right movement out of it. सही. So let's see कि अगर ये यहाँ पर आ रहा है, and how much can we twist them more? How much is there? What is the limitation of it? This looks nice. सही. बट वी हैव टू सी कि ये कितना है. ये है, और ये कोई ख़ास पता नहीं चल रहा ट्विस्ट. सो लेट्स, ओह वी कैन डू दिस. काफ़ी कुछ है यार, कुछ भी नहीं है अभी यार.
फिर यहाँ तक आते आते we can just remove these damn things. You see, ये तो बहुत ही अच्छा है. But obviously we have to be very careful about these things. So यहाँ पर आके इसको ज़रा F curve अच्छा सा बनाते हैं. देखें यहाँ पर ये स्टार्ट ही अब हो रहा है, तो इट शुड बी लाइक दिस. ये स्टार्ट हो जाए यहाँ से, where दूर से हो जाए. इसी ये एकदम से आता है ना, ये यहाँ से सी. अच्छा, सी सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट हो जो कि अलाइव लगे. बट अगेन ये जो पार्ट है ना, ये बहुत तेज़ी से आता है. सो लेट मी जस्ट फिक्स इट फर्स्ट, वरना ये सब कुछ ही अजीब लगने लगेगा शो एफ. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ. इसको थोड़ा वक्त देते हैं, अगर इसको वक्त चाहिए तो इसको वक्त दे देते हैं. इसको थोड़े फ्रेम्स दे देते हैं वक्त से मतलब. ठीक है, और एक सीन ये कि जब ये यहाँ से रोटेट हो रहा है ना, तो व्हेन व्हेन इट इज़ रोटेटिंग, जब ये कनेक्ट हो जाते हैं फिर रोटेट होते हैं, तो इतना तेज़ रोटेट नहीं होना चाहिए ओवरऑल इसको. इट शुड बी वेरी वेरी सटल. सो वेयर इज़ द रोटेशन, ये वाली. तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर बहुत, ये देखें यहाँ तो कुछ है ही नहीं. सो आई थिंक लेट्स क्रिएट दिस. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सटल सी रोटेशन होनी चाहिए. ठीक है, मे बी नॉट दिस सटल, बट सटल. ठीक है, और सटल. Now we did one thing के सही, यहाँ पर मुझे और ट्विस्ट चाहिए. सो लेट्स सी क्या हो सकता है, कितनी वैल्यूज हम छेड़ सकते हैं. यहाँ पर है अच्छा खासा मार्जिन, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट राइट नाउ. Let's play with these curves and see क्या values कितना. You see, that's what I want. Okay, चीज़ें थोड़ी सी और डायनामिक हो जाए. अच्छा, अभी देखो एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सेंटर में ही नहीं है कुछ भी. कहाँ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम ये कर लेते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना एक पोर्ट्रेट कर लेता हूँ और इसको पीछे कर लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने आई थिंक कैमरे पे कोई चीज़ नहीं लगाई थी, कैमरे पे लगाई थी. चलो खैर हो गई. दोबारा कर लेते हैं एनिमेट. डिलीट ट्रैक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अलाइन कि भाई क्या वैल्यू रखनी है. आई थिंक दिस इज़ नाइस. और यहाँ पर सेंटर भी अलाइन कर देते हैं कि आपका गोल्डन सेक्शन, क्रॉस हेयर सेक्शन ये है. नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फ़िल्टर ऑफ किया हुआ है. सो इसको मैं बंद कर देता हूँ ऊपर वाले कैमरे को. नाउ यू कैन सी कि हम सेंटर में नहीं है. सो लेट्स जस्ट पुट एवरीथिंग इन द सेंटर. और करना ये था हमें कि भाई यहाँ पर आकर
वी वांटेड कि भाई ये जूम होना शुरू हो जाए सब कुछ, तो एक पर आएगा यहाँ पर और फिर हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है, बट द आइडिया वाज कि थोड़ा सा स्लो रहे ये प्रोसेस, हम एनिमेशन एफ कर्व यहाँ पर आकर थोड़ा सा इस तरह से जाएंगे कि पीछे स्लो हो और एकदम से फास्ट हो जाए। ठीक है, देयर स्टिल वन थिंग जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर हुआ है ये, बट वो साथ कर लेंगे सही। अगेन यहाँ पर होल्ड्स की और ज़रूरत है, अभी ये बहुत जल्दी होता है और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है सब कुछ। सो स्टिल ये 10 फ्रेम में सब कुछ हो जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। सो लेट्स प्ले। अच्छा, एक यहाँ पे सही हो रहा है कि यहाँ कहीं बस रुक जाता है रोटेट होना, सो इट शुडंट डू दिस थिंग आइडियली। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पास जो ट्रांसफॉर्म है इसमें ये क्या, ओह दिस कैन आल्सो वर्क, ये भी अच्छा लगा है, ये भी अच्छा लगा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज नाइस फॉर नाउ। फिर देखना है ये एफ पर कैसे दे रहे हैं, शो एफ पर कौन सा वाला है ये, एच। ठीक है, सो ऐसे ही ये डेड हो जाता है यहाँ पर, डेड नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्टार्ट ही यहाँ से होना चाहिए कि ये आए यहाँ पर फॉर्म है। ठीक है, अभी मैं इंटरसेक्शन का सच वो नहीं कर रहा, बट ये कि ये वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से ही सही हो, सही है। ठीक है, और अगेन ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। एंड आई रियली वांट दीज थिंग्स टू बी वेरी अलाइव, बहुत ये जो डेड ग्राफ बना हुआ ना ये थोड़ा सा अलाइव होना चाहिए, सर्टल सा आगे मे बी, लेट्स सी। लेट मी जस्ट डिलीट दिस, लेट मी जस्ट, क्या डिलीट कर दिया मैंने, फ़ोन मॉडल नहीं क्लोनर, मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, ये सही नहीं बन रहा। डिलीट, डिलीट। ठीक है, अभी नाउ वी डोंट हैव एनी, वी जस्ट हैव दिस रोटेशन, लेट्स जस्ट डिलीट दिस एज वेल। ठीक है, सो नाउ वी लिटरली डोंट हैव a single value। ठीक है, instead of just this one, now let's see how it looks। ठीक है, ओके। ठीक है, सो अगेन ये आता हुआ अभी ऑफ लग रहा है बहुत, तो लेट्स गिव इट अ बिट मोर फ्रेम्स। ठीक है, दिस नाउ इट लुक्स फाइन। ठीक है, अब कैमरा सही कर। सो जब भी इस तरह की कन्फ्यूजन्स हो, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ भी एक साथ डील करना इज़ अ बिट ऑफ अ हैसल, सो यू कैन जस्ट ट्राई टू डू दीज थिंग्स के
say sure. Let's play. देखिए यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम इसकी हेल्प ले लें, ठीक है, और लेट्स सी कि अगर मैं ये वैल्यू बाहर, अच्छा नेगेटिव में ही आगे लेके जानी है, सही, नेगेटिव में पीछे लेके जाते हैं. लेट्स सी इफ इट हेल्प्स आउट टू यू नो ease the whole process. मैं चाह रहा हूँ अभी ट्रांजिशन स्मूथ कर लें. दिस फाइन, दिस लुक्स फाइन. अब थोड़ी सी और इसमें स्मूथनेस आ जाए तो वो कैसे होगी, वो मुझे लगता है पोजीशन वाई, ये इग्नोर. लेट्स सी पोजीशन वाई एनिमेशन शो आफ्टर. ये आया और ये खुलना शुरू हो गया. सही है सर. लेट्स सी. ठीक है, फिर बेहतर है. ये देखिए ना अब. ठीक है सर, लेट्स जस्ट put it a bit upwards. Let's see. ठीक है. This looks much better. This looks much better in terms of transition. Now we just have to rotate it. And again, I know I'm repeating these things, that the reason why I'm doing these long videos is because the problems I'm facing, you will definitely face them as well if you're following me. So I want you guys to go through these things and figure out कि जिस तरह से मैं solve कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ें को break down कर रहा हूँ जब कुछ ख़राब हो रहा है. So that's how I do things. And I'm definitely sure there are better ways to do it, but that is what I know so far. ठीक है. Okay, this is better. Now we just have to, जैसे ही ये click करता है यहाँ पर, now we just need a value जो कि मज़ेदार सा एक हमें वो बना दे. ये things like this. ठीक है. So ये और ये. Let's see. Very nice. Let's play. ठीक है. और अब क्योंकि ये B जो है ये बहुत जल्दी आ जाता है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं. ऐसे ही बहुत जल्दी नहीं करना है. So let's keep it very minimal. ठीक है. और इसको भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा और ट्विस्टेड. ठीक है. So it will just open up like a flower, which is also nice. ठीक है. So now we just need to add a bit of a rotation on the overall क्या कहते हैं flower. So let's add that. So कौन सी वैल्यू है देख लेते हैं. नो, ये वाली सही है. इसको रोटेट कर देता हूँ 34. सो यहाँ पर आए 0 पर वैल्यू दी और इसको कर दिया अपने प्रॉब्ली 180. बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देनी वरना वो सर घूम जाएगा उससे. एनिमेशन एफ कर्व. Okay, now let's play with this.
See, it's working. It's working. So now, the thing is that I don't want it to keep this speed in the middle because यहाँ पर मुझे होल्ड लाना है, यहाँ पर मुझे शो करना है कि ये थोड़ा स्लो होना चाहिए. So let's just try this curve. अब एंड और स्टार्ट थोड़ा फास्ट हो सकते हैं. Really nice. Okay, so one thing which I think कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं और कम कर दूँ ताकि थोड़ी सी रोटेशन नज़र आए. ठीक है, अगेन ये अच्छा रोटेशन नज़र आने के लिए वी नीड टू मेक इट अ बिट डायगोनल. ठीक है, बट लेट्स सी कितना खूबसूरत कर्व बन सकता है. और वो it's not just अच्छा यहाँ पे कर्व अच्छे बनाने का वो कोई ख़ास वो मकसद नहीं है, बट ये कि द मोर सिंपल इट इज़ द मोर simple the motion will be. ठीक है, सो आई कैन सी दैट यहाँ पर थोड़े से कोलिजन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है. ये देखो यहाँ पर भी ये ये हो गया यहाँ पर. तो वी कैन फिक्स दैट इन द रेंडर के थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे करनी होगी, 0.1 0.5 थिंग्स लाइक दैट. अच्छा ये जो आ रहा है ना ये बहुत पता है इनको कि कहाँ से क्या आना है. सो लेट्स सी कि हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि इसमें हेल्प कर सके. यस, ये है ना. सो 15 तक वी कैन डू दिस. और फिर यहाँ पर ये तो 15 पर आकर यहाँ पर we can just add some value here. Let's say 45. तो अब वो थोड़े से अलग अंदाज में आ रहे होंगे सब ऐसे. पता अब भी है सबको कि कहाँ आ रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डुप्लीकेट इट, लेट्स सी क्या होता है अगर मैं पहले तो मैं फाइल सेव कर लूँ. अभी तक मैंने फाइल सेव की शॉर्ट 07 क्योंकि 06 वो होगा जिसमें सर्किट आ रहा है. सो अगर मैं इसके नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाऊँ तो लेट्स सी क्या होता है. It does look nice, but we have to work on the we will need to work on the क्या कहते हैं वैल्यूज ताकि वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए. और ये प्लस ये बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है इसके हिसाब से. द नंबर ऑफ वैल्यूज इट हैव, द नंबर ऑफ क्या कहते हैं क्लोन्स इट हैव. लेट्स सी कि ये यहाँ पर आए. ठीक है, और मुझे लगता है कैमरा भी अब थोड़ा सा हम और बेहतर कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन. ठीक है, कैमरा ये कैमरा है. ओ ये कैमरा नहीं, ये कैमरा नहीं है, ये कैमरा है. ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर इट अ बिट मोर और देखते हैं कितना. सही है. और बाय द वे ये कम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है. कितने हो गए, 3 3 6 हो गए, 7 हो गए.
Let's try this. Nope. A 5. अच्छा मैं अनडू कर देता हूँ क्योंकि वो पीछे ही आ गया था कि मैं पुराने वाली फाइल में आ जाए. नंबर ऑफ क्लोन्स अभी फिलहाल यही रखते हैं. लेट्स सी दैट के और क्या करना चाहिए इसमें. अच्छा एक काम ये भी कर दूँ कि क्लोन में मैं देख लूँ कि मैं यहाँ पर मटेरियल्स ऑटोमेटिक एक होता है इसके अंदर ऑप्शन कि आप फिक्स टेक्सचर नहीं रेंडर फिक्स टेक्सचर कलर. खैर आई विल फाइंड इट एंड लेट यू गाइस नो. खैर कितना रह गया ये. Okay, now let's try duplicating it. Duplicate इस तरह के if I see it into a different plane और फिर मैं इसको पीछे ले आऊँ, you will say a duplicate effect of it. लेकिन वो पीछे होगा. तो देखते हैं यहाँ पर कैसा व्यू आ रहा है. See? तो इस तरह भी हो सकता है कि एक डायनामिक इफेक्ट बन जाए. Let's play it and see क्या कैसा नजर आ रहा है. Give it a share. ये भी हो सकता है but I don't really think this is a good idea. But it can work out. Let me just try it out. Okay, so if we see the reference, यहाँ पर वो बहुत close up पर है, and we can just see the tiles of the poem. Okay, so here we can do one more thing. Uh, Either we can just open this, ठीक है, and in the new panel, scroll side में लगा देता हूँ. Okay, और इसका मैं radius बढ़ा के देखता हूँ, because I need to cover these areas. ठीक है, और let's see. ठीक है, तो अभी क्योंकि वो एग्जैक्ट रोटेशन सेम है तो यहाँ से हम रोटेशन भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं. बट आई थिंक वो okay, let's try one more thing. Just to try and see कि composition और कितनी अच्छी हो सकती है. Because in the lenses area you won't see a lot of colors. Because the whole idea to create this frame is to have colors. So let's just invert the phone. Let's just try that. Zero करते हैं इसको. You see, this looks more simple. This looks more clean, right? So let's do that. But obviously यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना होगा values का क्योंकि intersection नहीं करे. Let's see.
Yeah, but it's not looking that cool enough to undo कर देते हैं. Yeah, doesn't look nice. So that's how you. So that's how you need to research and develop, because these sort of projects takes a lot of time. They cannot be just recorded in a tutorial and work things out. कि यार इसको इस तरह कर लेते हैं. So because that is the reason why these recordings are a bit too much. But you eventually you are going to face these problems. So why not now? ठीक है, तो in this area that just animation F curve, इसको मैं दो sorry 2 फ्रेम 3 कितने फ्रेम्स बढ़ा दिए मैंने 2 3 4 5 फ्रेम्स. ठीक है, अगेन इसको फिर कॉपी किया, यहाँ पर है एनिमेशन एफ कर्व. ठीक है, इसको ही 5 फ्रेम और अगेन इसको. और यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर थिंग कि मैं क्लोनर को एक और क्लोनर में डाल देता हूँ. लेट्स ट्राई डुप्लीकेटिंग दिस. एक क्लोनर लिया और इसको भी इसमें डाल दिया. इट विल टेक अ व्हाइल टू कैलकुलेट इट. नहीं कैलकुलेट किया वाकई. हाँ करें ना कैलकुलेट. I hope my PC don't crash out. Normally it's not that much of a big deal. These things happen a lot. क्या हुआ? Okay, whoa. अरे यार मैंने कैमरा तो खराब नहीं कर दिया अपना. Let me see. हाँ बच गए. पहले तो मैं अपने कैमरे पर टैग लगाऊं. खैर, यहाँ पर है ये ऑन किया. ऑब्जेक्ट में है, ग्रिड की जगह कहीं लीनियर करूँगा इस बार में, क्योंकि मुझे रेडियल नहीं बनाना है. मुझे एक लाइन के अंदर डुप्लीकेट चाहिए. ठीक है, वाई एक्सिस में नहीं, मैं 500 जी एक्सिस में. नो, जी एक्सिस में नहीं, इसको भी 500 एक्स एक्सिस में. रशी क्या बना. ठीक है, तो अब क्योंकि एक के पीछे एक है तो वो इस वजह से ऑफ लग रहा है. सो इफ आई चेंज द रोटेशन ऑफ इट यू विल सी द डिफरेंस hopefully. So let's add a bit more count to it ताकि एरिया फिल हो जाए. ठीक है, एंड लेट्स सी. और 500 तो नहीं, थोड़े और करीब लाते हैं, देखते हैं कितना अफोर्ड कर सकते हैं हम करीब लाना. So I think this will do the trick, or maybe we will not need 5 counts of it. 3 काफ़ी हो गए. और let's try the rotation. ठीक है, और maybe just a bit more close. See, अब मुझे लगता है कैमरा थोड़ा सा हमें टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आधे हैं इस जगह पर ही जाकर रुक जाएगा. नहीं रुका. अच्छी, मैं सेव कर लेता हूँ. मे बी ये फाइल कैन गेट अ बिट हैवी ऑन दिस. एक काम ये कर सकते हैं कि मैंने इसका सब डिविजन ऑन किया हुआ तो मैं ऑफ कर देता हूँ. लेट मी जस्ट सेव इट फर्स्ट. वो सेव किया हुआ था मैंने. खैर, अंदर गए, मैंने यहाँ से देखा पेज में सब डिविजन ऑन है, सब डिविजन ऑफ कर देते हैं. तब आइडियली इसको थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, मतलब फास्ट हो जाना चाहिए फाइल को. अनडॉक इसको बंद कर. क्या वही, ये तो बहुत स्लो हो गया. ऐसा क्या है? खैर, क्योंकि मुझे सिर्फ क्यूब्स और वो देखना है तो मैं बाकी सबको ऑफ कर सकता हूँ उनमें. लेट मी जस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मुझे सिर्फ बेस मैश भी मिल जाए तो वो इनफ है मेरे लिए. ठीक है, सो नाउ आई विल जस्ट ओनली सी द मैश.
of the whole thing. So let me just quickly create a preview. But एक मैं 40 फ्रेम पर आके देख लूँ कहाँ पर आके रुक रहा है. ठीक है. सो लेट्स जस्ट, अच्छा ये तो वैसे भी मूव नहीं हो रहा हो क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन टैग लगाया हुआ है. लेट्स जस्ट मूव इट नाउ. ठीक है. तो मैं स्लाइटली और मुझे इसको जूम करना है बस. दैट्स इट. ठीक है. तो अब जब मैं प्रीव्यू बना ही रहा हूँ तो मैं इनको अनलॉक कर देता हूँ. अनलॉक नहीं मतलब अनहाइड. अनलॉक लॉक नहीं है वो. ओके. आई नीड टू बी केयरफुल विद द वर्ड्स वाला द एक्सप्लेनेशन भी होता है. ठीक है. दिस कैन टेक अ व्हाइल सो आई विल जस्ट stop the recording for now. Okay, so this is the output of it. So मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है सही है और यहाँ पर ये बहुत सीधा सीधा कैमरा ट्रैवल कर जाता है तो इट शुड बी rotating. So let's try that out in the cloner section. Okay, let me just hide all these things first. It shouldn't be this heavy. I don't know why it maybe After Effects will always press over. Maybe recording की वजह से. I don't know. And this no, and the coordinates. Nope. Okay. So it is. ठीक है. So ठीक है. तो ये इधर मूव हो गया तो लेट्स जस्ट मेक इट अ बिट 45. ठीक है. तो ये क्योंकि यहाँ जाते हुए होना चाहिए और फिर हम इसको यहीं से टर्न होना शुरू कर देंगे 10 से. यहाँ पर आकर 0. ठीक है. और लेट्स जस्ट ओपन द ग्राफ. कहाँ गया एफ कर्व. show F curve. वो कीफ्रेम राइट नहीं हुआ. यहाँ पर आके 0. सब नहीं. 0. यहाँ 45. ठीक है. सर let's see animation F curve and it should be smooth. बहुत ज़्यादा कोई rotation as such नहीं हो. and ठीक है. let's try to create a preview. ओके. सो इस तरह की एनिमेशन आई है. सो जो कि सही है पहले वाले से. इफ़ आई कंपेयर दिस टू दिस वन. सो इसमें आता है और ये सीधा ही सीधा आ जाता है. सीधे सीधा आगे की तरफ आ जाता है. नाउ वी हैव सम रोटेशन. आता है रोटेट होता है बट ये एंड में भी जाते हुए स्टिल रह जाता है. सो आई डोंट वांट दिस. आई स्टिल वांट इट टू बी मोर रोटेटेड. सो लेट्स डू दैट. चले यहाँ पर. ठीक है. और let's try this. और थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर देते हैं. ठीक है. और अगर मैं एक और अच्छा कर्व चाहिए तो मैं इस पर थोड़ा सा नीचे ले आता. Let's try that.
Okay, so this is the one which just got out in the preview. Okay, ये है, ये यहाँ पर आता है, and still there are things जो ये, there is a part where just where it just goes into it और rotate नहीं हो रहा यहाँ पर. So this is something which happens a lot when you are unable to see the live preview क्योंकि file heavy हो जाती है. So let's see कि क्या हो सकता है for now, for the time being. Maybe let's just close this one and see if it works. Let's try closing Outlets. Let's try closing it as well and restart it. Okay, Cinema 4D. Let's see कि RAM किस तरह चल रही है, कितनी यूज हो रही है परफॉर्मेंस. Processor, apps, Bandicam, camera hub, Cinema 4D. Yeah, सही है, not that much. Let's play with the frame again. Okay, maybe in the geometry. So there is an option where you can say set the level of detail. ठीक है, medium करते हैं. Let's see. अब फिर बेहतर है. ठीक है, तो मुझे लगता है मैं टाइम, अगर मुझे रोटेशन ही देखनी है तो आई कैन जस्ट फिगर इट आउट विद द फर्स्ट वन. ठीक है, क्योंकि वो फिर चल रहा था, राइट. अब ये जो है ये फिर बेहतर है क्योंकि here I can see the whole rotation of it and I can also see कि बहुत हद तक रोटेशन नहीं हो रही है. ठीक है, तो we want more rotation here. So भले वो ऑफ है but I think it should work as a क्या कहते हैं, as a parent. ठीक है, क्योंकि वो क्लोन नहीं कर रहे बट वो है एक ही हायरार्की में और उसकी वैल्यूज चलनी चाहिए. But I thought I created some keyframes here. I don't know why they are not visible. Let me just open it up, see कि वो keyframes भी वापस आएंगे नहीं आएंगे. Okay, तो वो keyframe ही नहीं है. पता नहीं keyframes मैंने write किए थे. खैर, let's try that out. Right. ठीक है, so let's just do this with it. ठीक है, but एक काम करना होगा क्योंकि ये स्मूथ होना चाहिए शो आफ्टर. आई डोंट नो कौन सा वाला सिलेक्ट हो गया है. रोटेशन पी है, रोटेशन दोनों ही रोटेशन पी है. खैर, I think this should do the trick. Let's play, let's see कितना. Okay, and if and only if let me just increment save. खैर इसको तो सेव ही रखते हैं. इंक्रीमेंट सेव पर जो करने जा रहे हैं वो उस पर चेक करते हैं. और अगर मैं इसको वापस नहीं लेकर जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन एफ कर,
For example, if I just let it stay. ठीक है, and I want it to be more smooth. So that's how you get to see all those animations. They require this much attention to detail. Let's try to. Okay, let's just undo it and go back to the previous file. And now that we have fixed this thing, the rotation thing, let's just create a quick preview. Because I don't think that the other idea will going to work in this case. Alt P, okay. Okay, so this is what we have got from the preview. तो ये आता है, ये सही आ रहा है स्टार्ट में, बस देयर इज जस्ट क्योंकि ये बहुत सारे हैं और वो एक साथ कैमरा आगे बढ़ता जाता है, तो इट फील्स लाइक अ जिटर नाउ. बट इफ वी क्रिएट सम मोशन ब्लर, दिस कुड बी फिक्स्ड. However, let's fix this in the 3D file. ठीक है, यहाँ पर आकर this looks के ये jitter आ रहा है, but actually the camera is traveling fast so that it's looking के वो बीच में रुक रहा है. So let's see. This looks fine. Camera देख लेते हैं. So the only reason we are facing this much difficulty is because of the it's because of the phone. Let's just try one thing to ease this pain. Maybe we can just use a low. Well, I think I will tell you you guys in the upcoming lectures, in the upcoming sessions, because we need to create some low poly of it. I never thought this will be this area. This basic mesh will be this heavier. Right. I'll just create one more preview. Okay, so this is how it looks. It is much better than the one before. थोड़ा सा इसको और improve करेंगे तो I think ये और better हो जाएगा. So let's just move it a bit more upwards. Let's try this and create a preview again. Okay, so that's how it looks. So I'm totally fine with it. Let's see a few frames कि मुझे लगता है कहीं चीज़ off आ रही है. ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऑफ हो जाती है. So it doesn't really matter क्योंकि हम इसको 39 तक यूज़ कर लेंगे. We don't really need these frames.
Okay, so instead of going back and creating another preview, we can just use this one. Let's try to add it into our composition. And about these things, we will definitely fix them. Maybe in the render, I will just show you guys how can you fix it, because it can take a while. But I will just give you guys a quick overview. How can you do that? So, okay, let's jump into the After Effects. Meanwhile, let's just rename it shot 7 V01 finally. और इसके बाद let's just try to fix it जब तक After Effects open हो रहा है. So we don't really need the other one because जब इसमें fix हो जाएगा तो वो इसमें भी fix हो ही जाएगा. So let's see कि कितना we need to focus on fixing. Okay, so let's close it up and see how bad it is. So once we go here, यहाँ पर पता चल रहा था, right? So ये वाला एरिया चाहिए, तो बहुत subtle सी देखनी होंगी values. We don't really need to add a lot of values here and there. वो वरना चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी. See, ठीक है, so maybe this not back. I think this will do, or try कर लेते हैं. So when you और फिर जब हम सामने से जाएंगे भी तो it will not look any bad, क्योंकि देखें the intersection is over here, back side पर है तो पता ही नहीं चलेगी. ठीक है, so let's just save it as an increment and create a quick preview again. And meanwhile वहाँ पे preview बन रहा है. Let's just open up After Effects, Previsual Setup 2, और इसमें हम देख लेते हैं. I don't know मैंने कौन सी वाली कर ली है. कॉपी सही से देख लेते हैं. एडिट कहाँ है? Shot 7 V01. Shot 7 V01. And let's try to put it here. So I don't really have much energy left, so maybe I will polish things up along the way, but I have shown you guys enough just to understand how the process works and how everything works when you start compiling things up. Okay, I think this was a complex shot. बाकी सारे shots बहुत आसान है. You can try to do that, do them yourself, but जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो let me do that as well. See, it looks really nice. At least I like it. And in the time we have done it, it's totally worth it. Believe me. Because I have done this in the tutorials. I mean, these are not pre-recorded, and I haven't even tested things out. I was testing these things out in the tutorial, so you can see that is the reason why they are too much in duration. But I hope you guys have learned a lot in these things, in terms of finalizing things and troubleshooting the tasks. ठीक है, तो इसको भी मैं black कर देता हूँ so that you can see the transition better. Or T. See, so it will look nice, inshallah, once the project is done. So let me just repeat it again. Control R is for rotation. यहाँ से आप गाइड्स बंद कर सकते हैं. ठीक है. 0 is for the preview.
See, so once you start working on these things, they all start to make क्या कहते हैं sense. So, okay, I will record the next tutorial today, tomorrow. I'm a bit tired now. So, inshallah, this is not, we are nearly there. We just need to start these things. And then after that, the fun part will start, which is style framing and seeing the light and shadows and how can we, you know, identify the right metal and the right texture and the right color for all these things. So that will be the part where we will, you know, comparing, और जिस तरह हम प्री विजुअल से कंपेयर कर रहे थे, इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन इमेजेस से कंपेयर करेंगे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं. So they should look equally good in lighting. ठीक है. So the back and forth we were doing in the pre-visual, almost इसी तरह का back and forth ज़्यादा होगा style framing में भी, क्योंकि we will be just going back and forth and seeing कि किस तरह से material लगना है, कितना लगना है, और क्या duration, क्या light रखनी है, और light ख़राब हो रही है तो फिर एक और try करते हैं, फिर एक और try करते हैं. So that's how you create variations of it. So what you are seeing here is, for example, जो हमने यहाँ पर variations बनाए हुए हैं, you can see the VO1, VO2, VO3 एक shot के. So in the production, you will see a lot of variations of just one shot. For example, if just one person is working on just for shot number 2, and his entire day is spent on working on shot number 2. So imagine the work of iterations, the amount of iterations he have done. For example, if I'm doing just 3 iterations in creating a shot in an hour, imagine a guy who is working 8 hours or 9 hours a day just creating one shot. Okay, just creating one shot. How much iterations he will be doing, he would be doing. So that's how you will realize the iterations and the versions it really requires to get the thing right, how much time you need to spend on creating these things. Okay, even I am at this stage, need to create a lot of iterations, and once you try to create more and more and more iterations, you will see the difference in the output, in the final output. Okay, so I hope I know things are getting a bit more lengthy in terms of duration, but it's totally worth it in terms of understanding how things work and how are you going to troubleshoot all these things. Okay, so take care and thank you.